Hello, sir. Ex- Excuse me, sir. हाँ आसमान बोलो. Yes, I'm not using Facebook and Instagram, but I want to join Oasis Club. So, from where I can get the form? Asman, you must make Instagram or Facebook account in case if you want to engage with other clubs. Not only with Oasis Club, if you want to engage with cultural board or technical board or if any other like Google Developer Student Club. So you must have a Facebook or this Instagram account. So you can have all the announcement in your feed as soon as they are announced. Right. Sir, Oasis Club. sir, I have shared the link for OSS Club form in Club chat. Okay, we will provide the link at the end of the class. So web development is important, sir, to get a job in Google or Microsoft. Repeat again. I didn't hear that. Sir, it is important to learn web development, sir, to get a job in Google or Microsoft. Nazir, no, it is not important to know WebD or Android development to get a job in Microsoft, but it's recommended. If you know the work around web development and Android development, it is easier for you to pass the interviews and other stuff. But most likely for getting a job in Microsoft or Amazon or like this Google, you need to study DSA. Like DSA is an important part of engineering. Like you are in Comp A, so you must study the data structure and algorithms. So those are important aspects also. Yes, sir. And also projects, you will need projects. So projects के लिए तुम you can't just have projects in competitive programming. For projects you must know like data analytics or web development or Android development, something like some sort of these domain. Sir, you are from which branch? Yeah, you can guess it from my roll number, I guess. Sachin sir, 7253 roll number Shivanshu. Can you make him presenter? Okay, 7 2. 7253. Done. Okay, so Afiz, now Shubhanshu will be taking your session on CSS basic properties and also will be revising you about HTML. So have fun in this session. Good afternoon, everyone. I'm Shivanshu Singh. I'm SE Comp B, and I'll be taking your lecture on CSS. But before going to CSS, I'll be first giving a quick revision on HTML, which I have taught you guys in the last class. So let me know if my screen is shared. Yes, sir. Is it Yes, visible to all? yes, sir, it is shared. Okay, so this was the code from the previous lecture, okay, but I have made some modifications in it. So I'll be telling you again what all the properties I have taught you guys. So first of all, this was all about the heading tags. So heading tag starts from H1 till H6. The use of heading tag is in any website you have seen some main content. Then after that there is some subheadings. Then there is some subheadings. So to define all those subheadings, we use different types of heading tags. For the main heading, we usually use H1. Then after that H2 and so on.
So every h tag has its different font size. Okay, so as you can see, h1 is different, h2 is different, h3 and so on till h6. They have different sizes. Then after the h tag, sorry, then after the h tag comes the division. So division is nothing but we use the div tag to bind the content into certain boxes. So if you want to give certain properties to some content, so for that we use a div. Okay, after that we come across the paragraph tag. So पैराग्राफ टैग में क्या होता है कि जो भी कंटेंट हमें अपार्ट फ्रॉम द हेडिंग जो भी हमें चीज़ें डिस्प्ले करानी होती है, फॉर दैट वी यूज़ द पी टैग. After using the p tag, we get into the iframe tag. iframe tag का यूज़ होता है to display any video or any tutorial content. So इसमें क्या होता है कि as you can see the सारा जो content है हमारा वो इस फॉर्म में डिस्प्ले होता है. हम वीडियो को यहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं. So this was the use of iframe tag. Okay. After that, after the iframe tag comes the detail tag. So detail tag is like a spoiler to anything. Like suppose यहाँ पे हम एक बटन जैसा बना देते हैं and if we click on that we can look into the content which is written inside it. So detail tag define करने के लिए first of all we need to put a detail tag. After that हम उसमें एक summary देते हैं. Summary will be displayed as this content, the spoiler which is written. अगर हम कुछ summary नहीं देते हैं तो by default वहाँ पे detail ले लेता है and हम उसको अपने हिसाब से customize करना है तो for that we use summary tag. So inside the summary tag I have written some content in p tag. p tag में यार उसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे इन केस हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना है तो टू यूज़ सुपर कीवर्ड हम सब कीवर्ड का यूज़ करते हैं एंड उससे क्या होता है कंटेंट हमारा इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाता है. लाइक हमें 2 की पावर 5 डिस्प्ले कराना है. सो फॉर दैट वी यूज़ सब कीवर्ड. ओके. After sub we have b tag. So b tag is used to display the content in bold. As you can see this content is in bold. After b tag after the b tag comes the subscript tag. So subscript में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमें नीचे लेके आनी होती है लाइक एमिट के नीचे हमें ऐसे 4 लिखना है तो फॉर दैट वी यूज सबस्क्रिप्ट टैग. देन आफ्टर दैट अगर हमें कंटेंट को इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो फॉर दैट वी यूज़ आई टैग. एंड उसी तरह अगर हमें कंटेंट के नीचे अंडरलाइन लाना है तो फॉर दैट वी यूज़ यू टैग. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैग्स. Then after that we come across list. So there are two type of list. One is the ordered list and other is the unordered list. So ordered list में क्या होता है यार कि सारा जो कंटेंट होता है हमारा वो एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में आ जाता है. तो इससे क्या होता है कि मतलब हमें नंबरिंग बाय डिफ़ॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड वो यूएल खुद प्रोवाइड कर देता है. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ आई टैग सॉरी ओएल टैग. एंड लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि हमें अगर इसको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं. तो यार हमने ये चीज़ सोची थी कि हम इसे CSS में पढ़ाएंगे बट उसको करने का एक और तरीका होता है कि हम ओएल टैग में टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि हम उसे आई में रखना चाहते हैं लाइक कैपिटल रोमन नंबर्स में रखना चाहते हैं या फिर लेट्स से हम उसे कैपिटल ए में रखना चाहते हैं, स्मॉल ए में या फिर स्मॉल आई स्मॉल रोमन नंबर्स में. सो जो भी हम इसको चेंज करते हैं सो दिस विल बी डिस्प्लेड राइट ओवर हियर. ओके. सो ये होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट. सॉरी Please go with English, sir. Some of us don't know Hindi. Okay, sure. Then after that we come across the UL tag that is the unordered list. So let me remove this first. So UL tag inside the UL tag what we can do is whatever content we want to display in the list, it will not be coming as numbers or ABCD. It will become inside points. Okay, so this is the use of li tag, UL tag. Inside that we use li tag. Then after that we come across forms. So to define forms we first write a form, and inside form there are two different attributes. So the first attribute is action and the other attribute is method. So the use of action is if at all we want to display the content in the backend, so backend we provide that link inside the action and the entire data which we fill inside the form will be sent to the backend. So for that we use action. And after that the next tag is the next attribute is the method attribute. So this is used so that we can tell the browser that by which method we want to send the content. Like this is something advanced in web development. You will be taught about this in your backend when you will be trying to learn backend. So then you will get to know about this.
Then after the form, inside the form, we get the input tab type text. So whenever we want to display any name or anything, for that we use input type text. Inside this, we can write any name. And if we want to fill this form, this name will be sent to the backend. Then we have the password tag inside this. If you want to write any password, so it will not be visible to any users. So to write the password tag, what we use is we take the input type as password. After that we get across the radio buttons. So radio buttons is like in this, as you can see, we have two options, whether someone's gender is male or female. So suppose he clicks on this, the other will not be clicked. So how we can do this is we just provide a field set tag. I'll tell you what is the use of this entire code. Okay, so first say we put input type radio. Its name is suppose Jen, and the next is input type radio, and its name is Jen. So both of them are given name Jen. So what this will do is कि हम अगर once we click on female, the male will not be clicked, and if we click on male, the female will be unclicked. So this is the use of giving same name to both the codes. So this was the use of radio. And after that, this field set, what is the use of this field set is, this provides you this outside box so that the content inside this may look quite good. And after that, this is the legend tag. This is used so that we can provide some styling into the HTML. So this gender is being displayed inside this line. So this is done with the help of legend tag. After that, we come across the text area. So suppose we want to take the address of a particular person. So we don't know how many lines it will take to display the address of some particular person. So for that, we use the text area. Inside the text area, let's say we give it a name, address, and we provide its number of columns and number of rows. So उससे क्या होता है कि this will be the number of rows and this will be the total size of address area. And हमारा content जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, this will come inside this. Okay, so this is the use of this address tag, text area. Sorry. Then after that we come across the number tag. Sorry, before that we have email tag. So email tag में क्या होता है कि by default whenever you type any email into this, it will check whether the email has specific letters like @.com and all. So this is done by using the email tag. After the email tag we have the number tag कि जब भी हम फ़ोन में इस वेबसाइट को खोलेंगे, so we can only write numbers inside this. We cannot write any alphabet inside this. So this is the use of input type number. After that we get input type. सर आपने नंबर बोला, तो ये क्या ये चेक भी करता है कि ये 10 डिजिट का होना चाहिए कि या फिर ये कोई नंबर है? ये चीज़ें हमें चेक करने के लिए उसके लिए एक अलग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है. इसमें से फिर सिर्फ ये चेक करेगा कि ये नंबर है या नहीं. लाइक हम इसमें टेक्स्ट नहीं दे सकते हैं, ABCD हम इसमें नहीं डाल सकते हैं. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नंबर टैग, नंबर टाइप. थैंक यू सर. ओके, सो आफ्टर द नंबर टैग कम्स द कलर. सो सपोज हमें वेबसाइट में बताना है कि विच कलर दे वांट टू डिस्प्ले. सो फॉर दैट वी यूज़ दिस कलर टैग. सो इससे हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नंबर टैग, आफ्टर color tag, sorry. Then comes the input type range. So this is used to define the range of what particular data you want to display. Like suppose the maximum value is 1000 and the value given by the backend is 200. So it will take only 1/5 of the entire area and it will be here by default. And if you want to increase this, you can increase this manually as well. Okay, so this is how we can provide the input type range. After that comes the input type date and input type date time local. So input type date में we can only give the date to the input, like whatever date you want to select you can select, and input type date time will provide you date as well as the recent local time. So this was all about date and time. Then after that comes the meter tag. So meter tag is nothing but if you want to display the content in this manner, you can use the meter tag. It will also have certain maximum value and certain minimum value. This value will be provided by the backend. Whatever will be the value, it will be displayed. Like if the value is 50, it will take half of the area. Let's say its value is 75. So its value is 75. So it will take half of 3/4 of the total area, as you can see. Then after the meter tag, we get the progress tag. And suppose progress tag we do not provide any maximum value. So this will be displayed as it is, and after providing it a maximum value, and let's say the value is 5. So
it will take that value. Okay, so ये सिर्फ इतना ही display होगा. So this was all about the progress tag. Then comes the suggestion tag, detail tag. Okay, so इसमें क्या होता है कि whenever you want to like whenever आपने YouTube use किया होगा, so whenever you type anything, उसके suggestions will get inside it. So ये होता है हमारा suggestion detail tag से. So inside the detail tag, whatever we put in the options, we can get the data in this format. Like what you need to do is just type the data list, just type the input type text, and inside text you need to provide it a name. And after that you need to give it a list name. So suppose the list name is suggest, so the inside the data list tag the id will also be the suggest. Okay, so after providing the input type, we need to get the data list, and inside the data list the id will be same as this list type. So let's say it's suggest. So after that this suggestions will pop up inside that input type text. Okay, so first option is, let's say, abc, then we have dta and many more. So all these data will be displayed inside this data list. So this was about the data list. After that we have the option and select menu. Like suppose there are only 3 options which you want your users to select. Like suppose हम देना चाहते हैं कि from which class do you belong, and we have only 3 classes, first, second and third. So in that we can provide them with only 3 options, and इनके अलावा they cannot select any other option. So let's say I provided option 3, so this will be displayed right over there. This is done using the select tag and option tag. And option maybe if you want to give some sub options, so for that we use opt group. So the use of this opt group is यहाँ पे हम sub options भी provide कर सकते हैं. After that we came across the a tag. So a tag में क्या होता है यार कि whatever href link you want to give, like if you want to redirect your users from one page to other, then you can use this href tag. Like if we click on this, we will be redirected to the Amazon website. So this is the use of link tag. I hope you all are getting what I am teaching you. If you get any doubt, you can unmute yourself and ask. Is it clear till now? So this href tag is similar to the that we link 2 pages of web page, that's called hyperlink, same as that. No, they are a bit different. Like इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक link, if we want to provide a link in our website, so that after clicking into that link we will be redirected to another link. So उसके लिए हम इस href tag का use करते हैं. Okay sir. And also there is one attribute which is target, and to like हम अगर ये target नहीं provide करेंगे, so the same data will be reloaded on this page only. And if we provide the target to be blank, so उससे क्या होगा, the page will open on a new tab. So for that हम target को blank कर देते हैं. Any other doubt? No sir. What's the use of the name attribute? Excuse me, sir? What is the use of? The name attribute, like when the input type is range, the name attribute makes sure that the user cannot select multiple options. But in other input types, what is the use of the name attribute? Name attribute. Where is the name attribute? Sorry, to go up like input type is equals to text, name is equals to name. Okay, so this attribute you're talking about. So this Yes, is the sir. list. Yes. Like whenever we take data inside the backend, like let's say हम backend में कुछ suppose ये किसी class के बच्चों का roll number है, ठीक है? So we provide this name as roll number. So after that क्या होगा कि जब भी हमारा data backend में जाएगा, so this data will be taken as roll number. So उससे क्या होगा कि backend में हमें clarity मिलेगी कि ये roll number है बच्चों के. So for that we provided a name attribute. So this is the use of this name. अगर हम ये नहीं भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा until unless हम बैकएंड में काम नहीं कर रहे हैं. If you want to display only the front end, so for that if you remove this, then also कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. But अगर हम बैकएंड में डील करेंगे, so we need to use this name attribute. Is it clear? Yes, तो सर बेसिकली इट इज यूज्ड टू लाइक अगर हम किसी और फाइल में काम कर रहे हैं मतलब CSS में, तो इसको रेफर करना चाहें तो ये है मतलब आईडी जैसा काम है क्या सर इसका?
नहीं, आईडी जैसा काम नहीं है। आईडी इज डिफरेंट फ्रॉम नेम। नेम हम मोस्टली बैकएंड में ही यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, एंड आईडीज़ वगैरह के लिए हम अभी सीएसएस में बताएंगे कि हम आईडी से कैसे रेफर करते हैं। हम नेम को बैकएंड में सीएसएस में यूज़ नहीं करते, नेम एट्रीब्यूट। एंड सर वन लास्ट थिंग सर, में जैसे आपने टेक्स्ट डबल कोट्स में लिखा हुआ था सर, वो डबल कोट्स जरूरी है कि लिख सकते हैं वैसे? हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। द डबल कोट्स आर इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर हम नहीं देंगे तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या है, तो डबल कोट्स आर इम्पॉर्टेंट। सर Sir, can you please स्पेस send this भी HTML इम्पोर्टेंट है जो आप file दे after रहे हो? the? हाँ, स्पेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Sir, can you please share this HTML file after the presentation? I'll tell you what, we have our website of Spark, so we update that website every day. So whenever a class is over, you will get the entire source code, the PPT inside that website. So हम उसके लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, so उसके लिए हमें बार बार शेयर नहीं करना पड़ेगा। Thank you, sir. Okay, so I guess href tag was over. Can I continue or any other doubts? सर जस्ट So it लास्ट is वन, A tag ये or सर href जैसे tag? क्या? Sorry. So it is A tag or href tag? What is it is known as? This is the A tag. Inside the A tag, we provide href. Href refers to the hyperlink. Is it clear now? Yes, sir. Shall I continue? Okay, so moving on, we have the table tag. So if you want to display any table into the website, for that we use the table tag. Like here you can see we have name, class and age. So inside the table tag, we put all the heading, we put every content inside this tr. So what is the use of tr is it provides us the row. Like this is the first row, so we provide it inside the tr tag. And after that, inside the tr we put the th stands for table heading. So let's say this is the first heading, name, the second is class, the third is age. So this will be displayed like this, name, class and age, and it will have different font weight. Okay, so after that, if you want to display the table data, then again we use the tr tag, and inside the tr tag we use tt, which is the table data, and उसमें हम अपना सारा data display करा देते हैं. Same for this as well. So this was about the table tag. Then अगर हमें वेबसाइट पे कोई इमेज डिस्प्ले करानी होती है, so एक सेकेंड, तो उसके लिए हम img टैग का यूज़ करते हैं, एंड img टैग में हम ऐसे src देते हैं. तो src लाइक इस केस में ये लिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. हम गूगल पे जा कर के किसी भी फ़ोटो की लिंक या कोई भी लिंक डाल के यहाँ पे उस इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं. लाइक दिस इमेज इज़ डिस्प्लेड बाय द internet, and this is the link for that image. Okay, so yeah, moving ahead, this was all about the image tag. Okay, so I guess I am clear So, with the HT. Yes. so can you show us how to select the link of image from Okay. internet? Okay, so let's say um, let's say you want to display this image into your website. Just like right click on this and copy the image, copy the image address, the third last option, and after that go to your VS Code and like दोबारा ही इसको हटा नहीं सकता. So inside the img tag, you provide the src as the link, and in your web page you are good to go. You can see the image. Is it clear now? सर जैसे आपने ये Yes, टेबल yes. टैब के अंदर ये सब आप रोज डिफाइन कर रहे हो, तो सर अगर जैसे आपने हर नेक्स्ट लाइन में ये लिखे टाइप किया है, अगर मैं एक ही लाइन में स्पेस देकर करता तो ये कोई लैंग्वेज तो है नहीं कि एरर दिखाएगा. तो सर कैसा शो करता है कि मतलब कुछ कोई मैसेज आता है कि ये टाइप रॉन्ग या सिंटैक्स गलत है, या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता? HTML का यार ये सीन है कि अगर हम कोई भी चीज़ गलत लिखते हैं तो वो उस पर्टिकुलर डेटा को वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है. लाइक उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमें सिंटैक्स एरर दे देगा. HTML काफ़ी मतलब ऐसे फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो अगर उसमें तुम्हारा कुछ गलत होता है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर डेटा तुम्हारा वेबसाइट पे डिस्प्ले ही नहीं होगा, एंड बाकी सारा डेटा डिस्प्ले होता रहेगा, कोड चलता रहेगा. सर ओके Yes. सर.
Sir, can you check? I had sent you a photograph. What is happening? Why it's not displaying on my? Okay, just wait for a while. Excuse me, sir. Yes. Sir, if we want to put a restriction that we cannot enter anything else which is in our drop down list, like there you give the text box name suggestion in which we can type ourselves other thing other than the drop down list. एक सेकेंड कौन सा दिस वन Suggestion. सजेशंस हाँ अब वापस एक बार बोलना So here you can type anything of our choice which is in not the यस data list. So if we can यस put यू the कैन टाइप restriction. एनीथिंग ऑफ योर चॉइस ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा whatever you want to type you can type it will just provide you the similar suggestion like if I type yes s I can see that STO is already being suggested. Sir, can we So put restriction that we cannot type anything else? yeah but that is done using the backend like हम type तो कुछ भी कर सकते हैं but वो data हमारा valid नहीं होगा so in that way we can put the restrictions that is done using JavaScript. Anything else? Sir, what is the difference between tag and an attribute? The difference between tag and attribute. Okay, so let's say this is our input tag. सो इनसाइड द इनपुट टैग लाइक इनपुट टैग में क्या होता है कि हम अपने कंटेंट को हम कुछ उसमें इनपुट कराना चाहते हैं बट वो टैग वो किस तरीके से इनपुट होगा वो एक पासवर्ड के जैसे होगा नाम होगा ईमेल होगा रेडियो बटन्स होंगे तो उन चीज़ को हम एट्रीब्यूट की मदद से देखते हैं लाइक हमारा टैग जो है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर बताता है एंड उससे हम एट्रीब्यूट से उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली लाइक हम अगर मान लो अपने h1 टैग में एक एट्रीब्यूट देते हैं कि इसकी id इज सम हेडिंग सो वी कैन चेंज इट CSS एंड उसकी तो उससे हमारा क्या होगा कि हमने h3 टैग से तो प्रोवाइड कर दिया कि h3 टैग के अंदर ये कंटेंट आना चाहिए बट उसकी हम id से हम उसका बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं कि इसका कलर ये होगा या इसका फॉन्ट वेट इतना होगा इसका फॉन्ट साइज कितना होगा सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन attribute and that tags. Okay, sir. एक्चुअली क्या है कि टैग्स जो है वो HTML के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और एट्रीब्यूट क्या है उन टैग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है. Okay, sir. Is it good? Yeah, so is it clear? So Yes, shall I sir. move on to the CSS part? Okay, so Yes, sir. this is the CSS lecture. The topics which we are going to cover today is introduction to CSS, the type of CSS, the CSS selectors, and the properties of CSS. So what exactly CSS is? It stands for the cascading style sheets, and it describes how the HTML items are to be displayed on screen, paper, and medias. It saves a lot of work. Like we can change many of the things, and we just need to provide certain ID and classes, and उसकी मदद से हमारा काफ़ी सारा काम ईजी हो जाता है. इट कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट वंस और एक्सटर्नल स्टाइल शीट से तो हम काफ़ी अलग अलग वेबसाइट के डिज़ाइंस को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट एज वेल. देन देयर कम्स द थ्री टाइप्स ऑफ CSS. So the first type of CSS is inline CSS. So inline CSS is used to define a particular element of HTML and उससे हमारा सिर्फ एक particular element का style हम change कर सकते हैं. So as someone asked कि tag और attribute में क्या difference होता है? So style attribute का use करके we can change the style of any of the text. Like let's say this is our inline CSS code. So let me provide some style tag, and inside the style, let's say I want its color to be red. Okay, so if we put its color to be red, so you can see that the h1 tag is being changed to red color. So this is how we can define the color of any tag. So but इससे क्या होगा कि अगर हमारी वेबसाइट में let's say यहाँ पे एक और h tag है and this h tag एंड इस एच टैग में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही सिर्फ एक बार में टारगेट करता है. सो दिस वाज अबाउट द इनलाइन CSS. आई विल टेल यू हाउ देयर properties are.
Okay, then after that comes the internal CSS. So internal CSS यार this is being displayed inside the head tag. So head tag के अंदर हम लिखते हैं style, and inside this let's say I want to change the color of h tag. So let's say I take the h1 tag, heading tag, and inside this I write its color as blue. So एज यू कैन सी इस वाले एच का टैग तो ब्लू हो गया बट इस वाले का नहीं हुआ. सो हाउ दिस इज गोइंग ऑन इज कि वहाँ पे जो बिहेवियर होता है द बिहेवियर इज इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, लाइक द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द इनलाइन सी एस एस, द सेकेंड प्रायोरिटी इज गिवन टू द इंटरनल सी एस एस एंड द थर्ड प्रायोरिटी इज गिवन टू द एक्सटर्नल सी एस एस. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हमने इसको हमने कहा कि हमारे वेब पेज के अंदर द एंटायर h1 टैग शुड कन्वर्ट इट्स कलर टू ब्लू, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ वाला कोड एग्जीक्यूट होने वाला है तो इट विल सी की ओके इसको स्टाइल हमने रेड प्रोवाइड किया हुआ है, तो बाकी सारे h1 टैग्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर, बट ओनली दिस पर्टिकुलर टैग विल बी दिस पर्टिकुलर हेडिंग विल बी इन रेड कलर. So this is the main difference between inline and internal CSS. Also internal CSS inline also the internal CSS is used to define this entire web page. Like h1 tag यहाँ पे जितनी बार भी आएगा, like I give another h tag and new content, I just want to add something inside this. So ये भी हमारे ब्लू कलर में डिस्प्ले होगा, लाइक ये पूरे वेब पेज का कलर अब इस इंटरनल CSS से डिफाइन होगा. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द इंटरनल CSS. देन कम्स द एक्सटर्नल CSS. तो एक्सटर्नल CSS के लिए यार हमें एक पर्टिकुलर फाइल बनानी होती है. सो लाइक उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइक आई रिमूव दिस कोड एंड आई वांट टू जस्ट टाइप li, एंड हम नीचे देखेंगे तो वी विल गेट li semicolon css. जस्ट क्लिक ऑन दिस, so you will get this file, but what you need to do is just put your finger on control, press the control finger, hover over it, its color will change from orange to blue, and then click on it. So हमारे पास अभी कोई ऐसी पर्टिकुलर फाइल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे एंड अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. सो दिस इज हाउ वी कैन लिंक आवर HTML पेज विद आवर स्टाइल शीट. एंड यहाँ पे हम जो भी Sir, बिहेवियर please इसको repeat this देंगे. statement last one you said. Okay. Okay. Just type li and go to this CSS, click on this, and you will get this style.css. Now click on the control and then hover over it, its color will change from orange to blue. Then click on this and it will take you to this page. If your page is not created, it will pop up an option to create a new page. Just click on this and the new page will be created. So this is how we can link our style sheet with our web page. Is it clear now? Yes, sir. Okay, so now inside this CSS, inside this style sheet, let me change the h3 color. So let's say the h3 color should be yellow. So now moving on to the website, we can see that this color has changed to yellow, like it's not quite visible. Now its color has changed to purple. Okay, so in this way we can link the external style sheet. अब now you can see कि अगर मान लो मैं यहाँ पे I change the h1 tag. Okay, so let's say I give this h1 tag a color of orange. So still ये यहाँ पे जो भी हम कलर प्रोवाइड करेंगे ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल स्टाइल शीट से आ रहा है. अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है ये इस स्टाइल के नीचे है. एंड सपोज मैं इसको क्या हो रहा है कि पहले ये स्टाइल को शीट का कोड रन हुआ तो उसने चेक किया कि प्रॉपर्टी ओके ब्लू होनी चाहिए, तो उसने उसकी h1 सारे h1 को उसने ब्लू कर दिया. देन वो नीचे आया, इट विल चेक व्हाट इज़ द स्टाइल शीट लिंक्ड. सो ये style.css लिंक्ड है. यहाँ पे हम प्रोवाइड करें कि h1 का कलर ऑरेंज होना चाहिए, तो वेब पेज पे वहाँ पे नेक्स्ट लाइन उसने देखी और वो प्रॉपर्टी ओवरराइड हो रही थी, तो इसलिए हमारा नेक्स्ट कंटेंट ऑरेंज कलर में डिस्प्ले होने लगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन मतलब दिस वाज ऑल अबाउट द 3 डिफरेंट types of CSS: inline, internal and external. If you have any doubt you can ask. सर आपने इनकी प्रायोरिटी कैसे डिफाइन की थी? सॉरी एक बार में एक बोला आप. Please define internal OSS again. अच्छा, internal CSS. Okay, so to define the internal CSS, what sorry, just type a style tag
and inside the style tag just write h1 and एक bracket open करना curly braces and inside that you can define any color or any property so that उससे क्या होगा कि हमारा सारा content जो है इसके अंदर वो change हो जाएगा and इस तरीके से हम inline internal CSS provide करते हैं. Sir, in line number 8, have you typed it or it came by itself? Line number 8. No, I have typed this. This line Is ना it internal necessary? CSS. No, it's not necessary. It's just a comment. Like हम जब आपको ये source code provide करेंगे, so you can see कि अच्छा ये वाला जो code था ये internal CSS के लिए था. You can see कि this code is written for external CSS. This is for the heading tag. This is the inline CSS. So just for your sake of clarity हम ये सारे comments डाल के रखते हैं. कमेंट से यार मैं बता दूं कि कमेंट्स में क्या होता है कि द कंटेंट इनसाइड द कमेंट वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है. इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि हमारा क्या डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज कमेंट. कमेंट के लिए क्या करना होता है, लेट्स से आई राइट न्यू कमेंट. ओके, लाइक तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल एंड स्लैश एंड ये आपका कमेंट हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कमेंट एनी ऑफ योर कंटेंट. ये चीज़ तुम्हारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगी बट ये तुम्हारे सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स का हम यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you, सर sir. इनकी Sir, प्रायोरिटी there ऑर्डर क्या बताया था आपने? इनलाइन प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था इनका? ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है यार, फर्स्ट इज द इनलाइन CSS, देन द इंटरनल एंड देन द एक्सटर्नल. बट अगर हम इंटरनल CSS के नीचे एक्सटर्नल CSS को लिंक करते हैं तो वो चीज़ ओवरराइड हो जाती है. लाइक सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो इनलाइन CSS की ही है, बट इन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो भी चीज़ हमारा नीचे होगा वो प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर लेगा. लाइक अगर मैं इस लिंक को अभी ऊपर कर दूँ तो ये इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करेगा. लाइक सपोज यहाँ पे डाल दूँ तो ये कंटेंट अब हमारा ब्लू में डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि जो भी चीज़ नीचे होगी दैट डेटा विल बी डिस्प्लेड. ओके, सो सिर्फ हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो इनलाइन CSS की ही होती है और उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी नीचे होगा वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो जाएगी. इज इट क्लियर? थैंक यू सर. Sir, there are different size of the different tag. As you see, H1 tag has a different size, H2 tag have a different size. Then how we can decide the size of the tag? हाँ, आई विल कम अक्रॉस दिस. लाइक ये हमारे CSS से हम उस फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं पिक्सल्स में. लाइक लेट्स से मैं यहाँ पे चेंज करके ही दिखा देता हूँ. लेट्स से यू वांट टू चेंज इट्स फॉन्ट साइज टू 50 पिक्सल. So now you can see the H1 tag has changed its size. So in this way you can change your font size as well. But ये चीज़ें हम अभी आगे बताएंगे दोबारा से. सर कोई ऐसे रूल होते हैं क्या? हेड 1 हेड 2 हमेशा छोटा होगा साइज में, हेड 1 से आप स्टाइल करके भी उसे इंक्रीज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं. लाइक सपोज हम यहाँ पे H2 लिखते हैं एंड हम इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं 100 पिक्सल. सो H2 हमारा उस H1 से बड़ा हो गया. सो ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है. लाइक अगर हमें किसी वेब पेज पे कुछ कंटेंट दिखाना है तो हम ऐसे सब हेडिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. बट उससे क्या होता है कि हमें क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा ये हमारी मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है. तो इससे तुम्हें बार बार H1 को फॉन्ट साइज़ नहीं देना पड़ेगा, H2 को नहीं देना पड़ेगा. बट अगर तुम्हें लगता है कि हमें ये फॉन्ट साइज़ ज़्यादा सूट करे तो तुम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. इज इट थैंक यू क्लियर? सर. ओके, सो टाइप ऑफ CSS, इज इट क्लियर दिस टॉपिक? यस सर. सर इसका ये मतलब सर वो इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS में मतलब ये मतलब हुआ कि इनकी प्रायोरिटी में कुछ डिफरेंस नहीं है, जो भी बाद में एग्जीक्यूट होगा मतलब वो ओवरराइड कर देगा उससे पहले वाले. हाँ, जो भी ओवरराइड कर रहा होगा वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो जाएगी. अगर नीचे है तो नीचे वाला डिस्प्ले होगा और जो ऊपर है वो नहीं होगा. सो इस तरीके से होता है. Sir, can external CSS can override inline CSS? नो, इट कैन नॉट. आप यहाँ पे देख ही सकते हैं. अरे लाइक हमने So यहाँ what पे if we H1 put टैग को कलर दे. external CSS after the inline CSS? No, but you need to put the this external CSS inside this head tag. So head tag तो यहीं पे क्लोज हो जा रहा है, आप नीचे कैसे डाल सकते हैं? Okay. और ये Yes. जो हमारा कंटेंट है ये हमारे बॉडी के अंदर आता है. सो हम ऐसा नहीं कर सकते ना. Yeah. Oh, okay, sir. Excuse me, sir? ओके, यस.
सर जब हम किसी टैग के ऊपर अपना माउस हवर करते हैं तो एक जो टेक्स्ट लिखा आता है वो टैग की जगह सर एलिमेंट वर्ड यूज करते हैं। सर एलिमेंट और टैग क्या सेम चीज है? एलिमेंट और टैग दो डिफरेंट चीज़ें हैं यार। लाइक दिस H1 टैग, दिस H1 इज अ टैग, ठीक है, यहाँ पे आप H1 देख रहे हो, ये एक टैग है, बट स्टाइल यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। आई गेस दिस वाज योर डाउट राइट, कि हम टैग और एलिमेंट मतलब कैसे। तो जैसे सर किसी भी टैग के ऊपर आप एक बार माउस अपना लेके जाइए तो वो जो MDN docs करके जो लिखा आता है उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बोलता है H1 टैग, H1 एलिमेंट इंस्टेड ऑफ H1 टैग। यस सर, H1 एलिमेंट, बट हाँ, तो H1 इज एलिमेंट यार, एलिमेंट और टैग लाइक दोनों सेम ही चीज़ होती है। एलिमेंट हमें बताते हैं कि उस चीज़ को किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, हम उसे टैग भी बोल सकते हैं, लाइक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, दोनों सेम ही चीज़ होती है। कैन बी मूव। So please show how to open style.css. ओके, सो यहाँ पे या आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके भी अपने style.css को खोल सकते हो। इफ़ नॉट, सो यहाँ पे एक लिंक होता है, आप कंट्रोल दबा करके इस पर हवर करोगे, इसका कलर चेंज होगा एंड देन आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका style.css खुल जाएगा। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द वे, या फिर ऊपर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। Thank you. Okay, so this was all about type of CSS. Then comes the CSS selectors. So there are 4 different type of selectors. I will not be teaching you all the 4, but only few, which are basic, and I'll just give you a simple explanation, and you can research about the others in detail from W3 School. Okay. So HTML selector selects a particular element which we want to style. So like इसमें हमने H1 को स्टाइल करना था, तो हमने H1 को यूज़ किया और हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया कि its color would be blue. So this is how we can select a particular element. Like a simple selector, it selects element based on their tags, their classes names, and their IDs. Okay. So let's say I provide this H2 class, H2 a class of heading. Okay, so if we want to select this particular H2 tag, so या तो हम यहाँ पे सीधा H2 लिख सकते हैं, या फिर हम डॉट डाल करके उस टैग का नाम लिखेंगे इफ़ इट इज़ अ क्लास, एंड सपोज यहाँ पे हम इसको एक ID देते हैं, इट्स ID इज heading 2, एंड अगर हम इसे हमें एक आईडी को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम उसके लिए हैशटैग का यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ वी राइट हैशटैग एंड आफ्टर दैट, सो इस तरीके से हम एक आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द 2 डिफरेंट वे ऑफ सेलेक्टिंग आईडीज़ एंड क्लासेस। लाइक अगर हमें क्लासेस सेलेक्ट करनी है, सो फर्स्ट वी नीड टू पुट अ डॉट एंड राइट द क्लास नेम, open the bracket and define its property, like change its color or change its font size, font weight, anything whichever you want to change. So this is how you can define any particular class. After that comes the heading, ID. So to target a particular ID, we use the hashtag and then we write the name, and after that we open a bracket, and inside that you can define its property. So this is how you can select particular ID and classes. Then comes the pseudo class selectors. So pseudo class selectors is nothing but हम अगर किसी भी वेबसाइट में किसी कंटेंट के ऊपर हवर करते हैं, सो इट्स समटाइम्स इसका कलर चेंज हो जाता है या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। लाइक let's say we go to the AIT OSS website. Just wait for a while until it's loading. Okay, so yeah, as you can see, whenever you hover over this box pops out. Okay, so this is done using the pseudo classes. Like हम इसमें hover effect डाल देते हैं and hover effect में whatever property we define, तो उसकी मदद से ये चीज़ें pop out हो जाती हैं। अब ये चीज़ें कैसे होती हैं ये तुम्हें अपकमिंग लेक्चर्स में बताया जाएगा, बट दिस वाज अबाउट द सूडो सेलेक्टर कि हम चीज़ों को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर सूडो सेलेक्टर वी कम अक्रॉस द एट्रीब्यूट सेलेक्टर। लाइक हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इतने सारे डिफाइन किए थे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप रेडियो बटन्स, ईमेल। सो इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट एनी ऑफ द इनपुट टाइप्स, हम उसके लिए एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। देन कम्स द कॉम्बिनेटर्स। सो कॉम्बिनेटर्स भी यार अपने आप में 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इन कॉम्बिनेटर्स के बारे में हमें तुम्हें अपकमिंग लेक्चर्स में बताएंगे। कॉम्बिनेटर्स से क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर पेरेंट से उसके चाइल्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, कभी कभार हम सिर्फ उसके
चाइल्ड को सिलेक्ट करते हैं उसके ग्रैंड चाइल्ड्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं। लाइक ये चीज़ें तुम्हें अभी शायद समझ नहीं आ रही होंगी, बट जैसे जैसे योर बेसिक्स विल गेट क्लियर्ड यू विल गेट टू नो हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड। Okay, then coming on to some of the basic properties of CSS. So, yeah. So let's say this is the h1 tag. Inside the h1 tag हमने बता दिया कि कलर कैसे डिफाइन होता है। कलर के बाद we can change its font size. Let's say I want to put its font size to be 50 पिक्सल। तो क्या होगा कि इसका font size हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर द फॉन्ट साइज देयर इज अ बैकग्राउंड कलर। लाइक इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स से आई वांट टू गिव इट अ रेड बैकग्राउंड कलर टू एंटायर एच टैग्स। सो इसका सारा बैकग्राउंड जो होता है वो रेड कलर में हो जाता है। यहाँ पे ये कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि जो कंटेंट है उसका खुद का कलर भी रेड है। लाइक इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं यार। लेट्स से वी पुट इट्स कलर टू बी येलो ग्रीन। सो इट्स बैकग्राउंड कलर विल नाउ बी चेंज्ड एंड यहाँ पे हेलो भी हमारा दिखाई दे रहा होगा। सो दिस वाज द बैकग्राउंड कलर सॉरी। देन आफ्टर दैट हम बैकग्राउंड में इमेज भी डाल सकते हैं। लाइक लेट्स से हम इस हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं, हेडिंग क्लास को, और ये हेडिंग क्लास को हमने सेलेक्ट किया था। लेट्स से हम इसका बैकग्राउंड इमेज डालना चाहते हैं एंड बैकग्राउंड इमेज में देन वी टाइप इट्स URL, और URL में हम एक ब्रैकेट ओपन करते हैं और लेट्स से ये फर्स्ट इमेज जो मैंने पहले से डाउनलोड करके इस फोल्डर में रखी थी, आई सेलेक्ट दैट इमेज। सो इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो इन दैट मैनर वी कैन चेंज द बैकग्राउंड इमेज एज वेल। आफ्टर दैट वी कम अक्रॉस हाइट एंड विड्थ। सो लेट्स से हम एक div को टारगेट करते हैं। ओके, सो दिस इज अ div टैग। सर ये इमेज जैसे आप बैकग्राउंड में इमेज डालो, ये किसी भी सेलेक्टर से आपने जो सेलेक्ट किया वो किसी भी सिलेक्टर में डाल सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिलेक्टर नहीं है ना कि आप उसी में ये फॉन्ट साइज वगैरह कर हम सकते हैं? किसी में भी डाल नहीं, हम एक div में भी डाल सकते हैं। लाइक मैं अभी एक div में डाल के ही दिखा देता हूँ। लेट्स से आई सेलेक्ट अ पर्टिकुलर div एंड हम इसमें चाहते हैं कि एक बैकग्राउंड इमेज आ जाए। सो हम इसमें URL लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। सो ये जितना भी था इसके बैकग्राउंड में एक इमेज हमारी डिस्प्ले होनी चाहिए, एज यू कैन सी। सर क्या इज इट हम लोग क्लियर? GIF डाल सकते हैं? सर हम सॉरी, लोग क्या GIF डाल सकते हैं? GIF हम वीडियोस भी डाल सकते हैं। हाँ, हम वीडियोस भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड में? सो उन चीज़ों के हाँ, हम उन बैकग्राउंड वीडियोस के बारे में उनको कैसे डालते हैं उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सो उनके बारे में भी हम आपको आगे बताते चलेंगे जैसे जैसे सीक्वेंस में चीज़ें चलती जाएंगी। ओके, सो मूविंग ऑन, हम div की बात कर लेते हैं यार। सो लेट्स से ये So हमारा we, एक div है एंड यस। so we put one image on the one tag, just like we put image on the h2 tag or h1 tag. Can we put a single image on the all the tag? Yes, if all the tags are in all the content inside the h1 tag will get a background image of whatever image you provide. जैसे आपने बैकग्राउंड इमेज डाली तो वो एक्चुअली आधी इमेज आ रही है, तो हम पूरी इमेज डालना चाहे तो वो पूरी इमेज के लिए हम बैकग्राउंड की पोजीशन को कवर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, लाइक बैकग्राउंड रिपीट को हम नो रिपीट पे सेट कर देते हैं, तो वो बैकग्राउंड एक ही बार आता है, वो रिपीट बार बार नहीं होता। एंड उसको हमें फिक्स करना है तो हम उसके बैकग्राउंड साइज को कवर कर देते हैं। तो जितना में भी कंटेंट होगा वो पूरे कंटेंट में वो बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी, वो रिपीट नहीं होगी। सो इन दैट मैनर वी कैन चेंज इट्स रिपीट वैल्यू एंड इट्स कवर वैल्यू। ओके, इसमें और भी सर कई वो सारे कह रहा है ऑप्शन कि होते हैं। पूरे ही बैकग्राउंड में, आई थिंक वो कह रहे थे पूरे बैकग्राउंड में, जैसे पूरे वेब पेज का ही पूरे की। वेब पेज के बैकग्राउंड में। ओके, सो अगर पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड में हमें डालना है, सो ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी टैग के अंदर होती हैं। सो इफ़ यू वांट टू चेंज एंटायर बैकग्राउंड, सो हम बॉडी को सेलेक्ट करते हैं एंड बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें अगर ये बैकग्राउंड इमेज डालते हैं तो
इट्स URL विल बी द इमेज। तो पूरे बॉडी के ऊपर ये सेम इमेज हमारी आ जाएगी। तो जैसे ये सारी इमेज हमारी रिपीट हो रही है, सो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम ये इस दो कोड को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि इमेज रिपीट नहीं होगी और ये पूरे कवर में हो जाएगी और सेम इमेज पूरे उसमें रहेगी। सो इस तरीके से हम पूरे उसमें ये डाल सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. So next comes the division tag, and let's say हम एक div को select करते हैं and we give it some height of let's say 100 pixel and a width of 100 pixel as well, and give it a background color let's say orange red. Okay, Screen free. so The screen free. एज यू कैन सी कि ये जो हमारा डिव था उसको हमने 100 पिक्सल हाइट एंड विड्थ दिया था एंड इसका बैकग्राउंड कलर रेड था। सो दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग डिस्प्लेड टू दिस डिव। अब हम खाली पिक्सल्स के साथ वाइल कोडिंग हम पिक्सल्स के अलावा VH VW का भी एंड परसेंटेज का भी यूज़ करते हैं। इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? No, sir. No, sir. इज इट फ्रीज? Sir. यस सर, वो थोड़ी सी पता नहीं अजीब सा हो गया है, शेप भी चेंज हो गया है। सॉरी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर Sir, सर I मोबाइल think की Sir, तरह the एक्सटेंड size हो of गया आपके image has been लैपटॉप की changed, sir. स्क्रीन। Can यस सर। anyone else Sir, image repeat हो his रही है। voice is cracking? Hello. सर सर स्क्रीन फ्रीज हो आपके गई है लैपटॉप की सर एक ही स्क्रीन फ्रेम पे मोबाइल सर। की स्क्रीन की तरह हो गई और Please put your फ्रीज भी हो doubt गई है। inside the chat. Sir, your screen is freezed and audio is also cracking. Okay, just wait for a while. I guess it's a network error. Hello. Is my screen visible now? yes, sir. Yes, Now sir. it's okay. Yes, sir. यस सर यस। Okay, can anyone tell me कि हम कहाँ तक रुक गए थे? मैं कहाँ से वापस रिपीट करूँ? सर बैकग्राउंड में सर इमेज डेव डालने के में बाद थे कुछ आप। सुनाई नहीं दिया सर। सर डेव थे आप। Okay. Okay. So I'll tell you this div part again. So let's say there is some content in pixel, it's width 100 pixel, and उसका background color is orange red. So as you can see inside Sir, आपकी sound pieces जा रही है। सर आपकी साउंड मतलब आवाज ऑडियो नहीं रुक रही Sorry? है। सर आप म्यूट हो जाते हो कभी भी। मैं म्यूट हो जा रहा हूँ। ओके, जस्ट एक सेकंड देना। सर हम सबको अटेंडीज बना दो, कोई कर रहा होगा क्या पता। Am I audible now?
Yes, sir. I guess it's the college Wi-Fi issue. I guess the bandwidth is quite low. Uh, if at all my voice get disconnected, please write it in the chat box. We'll take care of it. Okay. Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. So now we have the div tag. So I guess I have explained you. Okay, we provided a height of 100 pixel, a width of 100 pixel, and a background color of orange red. So इस सेम मैंने में जो हमारा डेटा है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है. Now let's say हम websites में we not only play with pixels, we also have certain properties like VH. So VH stands for the viewport height. So let's say मैंने div को provide किया a VH of 100. So उससे क्या होगा कि ये जितनी बड़ी हमारी वेबसाइट, जितना ये पूरा कंटेंट है हमारे वेब पेज पे, वो पूरा का पूरा ये VH ले लेगा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉप पॉइंट टिल दिस एंड. तो इस पूरे को हम 100 VH कहते हैं. दिस इज़ दी 100 व्यू पोर्ट हाइट. जितना भी डेटा हमारे व्यू पे आता है उसे हम व्यू पोर्ट हाइट से डिफाइन करते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन द VH विच इज़ द व्यू पोर्ट हाइट. देन हम विड्थ के लिए यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट विड्थ का, यानी कि जितनी भी हमारी टोटल विड्थ है हम इसको व्यू पोर्ट विड्थ के अंदर रैप कर सकते हैं. लाइक ये हमारा हो जाएगा 100 VW एंड ये सारा डेटा हमारा 100 व्यू पोर्ट विड्थ में आ जाएगा. लाइक पूरा वेब पेज कवर हो जाएगा और स्क्रॉल करके वो चीज़ें चली जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट VH एंड VW. एंड उस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करते हैं. देन आफ्टर दैट yeah, so I guess I've covered majority of the properties. Now we come across the border box. So border box क्या होता है यार? Like हमने एक just wait for a while. Let's say हम इसकी width को 50 कर देते हैं, इसकी height को भी 50. इंडिया हम इसी में बॉर्डर बॉक्स के बारे में बताते हैं. सो इसमें क्या होता है यार कि लाइक लेट्स से हम इसमें कुछ मार्जिन देते हैं एंड लेट्स से द मार्जिन इज़ 20 पिक्सल. तो ये क्या होगा कि अपने पेरेंट से हर साइड से 20 पिक्सल से पुश हो जाएगा. लाइक यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड कि वो अपने 20 पिक्सल से पुश हो गया है, टॉप से भी और 20 पिक्सल से नीचे आ चुका है. राइट में तो काफ़ी सारा स्पेस था तो वहाँ से वो कहीं पुश नहीं होगा, बट बॉटम में भी उसके 20 पिक्सल की स्पेस आ गई है. So this is in this way we can define the margin. After that we have the padding. So let's say मैं padding 50 pixel देता हूँ. So you can see कि इसके इस बॉक्स के अंदर का कंटेंट जो है वो अपने पेरेंट से 50 पिक्सल अंदर आ चुका है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग. मार्जिन में क्या होता है कि वो जो तुम्हारा बॉक्स है वो बाहर के अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है. बट पैडिंग में क्या होता है कि जो उसके अंदर का कंटेंट है वो चेंज होता है. मैंने इसमें मार्जिन दिया है तो बाहर से वो अंदर आया, एंड जब मैंने उसमें पैडिंग दी तो उसके अंदर का कंटेंट अपने आप में और अंदर चला गया. So this is the major difference between margin and padding. After that we also have border. We have border. So हम border define करने के लिए क्या करते हैं, let's say हमें एक 20 पिक्सल का border चाहिए एंड उसका कलर रेड होना चाहिए एंड वो एक सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए. सो हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को स्पेस दे करके डिफाइन कर सकते हैं. सो उससे क्या होगा, लाइक रेड तो इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा, लेट मी चेंज द कलर. लेट्स से हम एक ब्राउन कलर का बॉर्डर बनाना चाहते हैं 20 पिक्सल का. इफ़ एनीवन इज़ अनम्यूटेड प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ. हाँ, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक 20 पिक्सल का बॉर्डर आ चुका है. तो इस बॉर्डर से क्या होता है, ये ब्राउन कलर का है एंड इसका एक प्रॉपर्टीज सॉलिड है. ठीक है, सो इस तरीके से हम एक बॉर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं. सो इसका जो प्रोसीजर होता है वो इस तरीके से होता है कि सबसे बाहर हमारा मार्जिन लगता है, देन कम्स आवर बॉर्डर एंड उसके बाद हमारा पैडिंग होता है और उस पैडिंग के अंदर हमारा ये पूरा कंटेंट आता है. लाइक आई विल शो दिस टू यू इन योर डेव टूल कि ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि सबसे बाहर हमारी मार्जिन होती है, उसके बाद हमारा बॉर्डर लगता है, लाइक दिस इज़ दी बॉर्डर, एंड उसके बाद हमारी पैडिंग लगती है जो कि अंदर के कंटेंट में यहाँ पे आ जाती है, एंड उसके बाद हमारा जो मेन कंटेंट है वो डिस्प्ले होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉर्डर बॉक्स. आफ्टर दैट हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक हम अपने बॉर्डर रेडियस को चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स से हम बॉर्डर रेडियस को करते हैं 10 पिक्सल. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से साइड से हल्का सा बेंड हो गया है चारों साइड से.
So let me increase the border radius. Let's say it's 50%. तो यहाँ पे ये ज़्यादा 50 पिक्सल्स, तो यहाँ पे ज़्यादा बेंड होता हुआ दिख जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन द बॉर्डर रेडियस. अब बॉर्डर रेडियस में लाइक हमारे पास 4 अलग अलग टाइप कॉर्नर्स हैं, ठीक है. तो इन चारों कॉर्नर को हम इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं. लाइक हम यहाँ पे 50 पिक्सल देंगे. सो इसका पहले ये समझ लेते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है. तो ये सबसे टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है, देन द राइट पार्ट, देन बॉटम, एंड देन बॉटम लेफ्ट पार्ट. सो क्लॉकवाइज पैटर्न में ये चीज़ें चलती रहती हैं. सो लेट्स से सबसे पहले मैंने 50 पिक्सल दिया, देन मैं सिर्फ 10 पिक्सल देता हूँ, देन मैं एक बहुत बड़ा नंबर लेता हूँ, लाइक 100 पिक्सल ले लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं 150 पिक्सल लेता हूँ. मैंने 4 अलग अलग प्रॉपर्टी दी. तो ये होगा टॉप लेफ्ट में, देन टॉप राइट में, बॉटम राइट में, बॉटम लेफ्ट में, लाइक क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेगा. तो इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, एंड इसका अलग है. तो इसने सबसे पहले लेफ्ट में चेंज किया, देन उसके बाद यहाँ पे चेंज किया, देन नीचे, और फिर यहाँ पे. So, इस तरीके से हम इसके बॉर्डर रेडियस को 4 डिफरेंट प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं. एंड सपोज हमें खाली 2 ही प्रॉपर्टी चाहिए कि हम यहाँ पे ये वाले पार्ट को इस और इसके लाइक डायगोनल पार्ट्स को चेंज करना चाहते हैं. तो हम 4 की जगह खाली 2 ही प्रॉपर्टीज़ देते हैं. लाइक हम इसमें चारों को देने की जगह हम इफ वी डिफाइन ओनली 2 प्रॉपर्टीज़, तो क्या होगा कि ये दोनों हमारा 50 पिक्सल ले लेगा, और ये दोनों जो डायगोनल है ये हमारा सिर्फ 10 पिक्सल लेगा. सो इन दैट वे वी कैन डिफाइन द बॉर्डर रेडियस. इज इट क्लियर? सर अलाइनमेंट जैसा भी कोई वो होता है क्या, टैब या फिर स्टाइल का कोई पार्ट, वर्ड्स को जो आपने लेटर लिखा है अंदर उसको अलाइन करने के लिए सेंटर में? हाँ, हम उन टेक्स्ट को भी सेंटर में अलाइन कर सकते हैं. लाइक लेट्स से हम इस डेफ के अंदर के टेक्स्ट को अलाइन करते हैं एंड हम उसे सेंटर कर देते हैं. तो जैसे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होता है, आप यहाँ पे कंटेंट हमारा ऐसे सेंटर में डिस्प्ले हो जाता है. सो इज इट क्लियर? सर पिक्सल का क्या मतलब होता है? आपने बोला जो बॉर्डर रेडियस है उसका पिक्सल आपने 50 एंड 10 पिक्सल किया, तो वो थोड़ा सा कम हो गया, तो क्या मतलब हुआ पिक्सल का? यार ये यूनिट होती है, लाइक हमारी हर एक यूनिट होती है, वो लाइक काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, एंड उनसे हमारा एक पिक्सल बनता है. हाँ सर रिपीट करना, म्यूट हो गए थे आप. ओके, सो पिक्सल एक तरह की हमारी यूनिट होती है. लाइक जैसे हमारा सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, वेट के लिए केजीज होते हैं. सो वैसे हमें लेंथ वगैरह के लिए वेबसाइट में हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं. हम पिक्सल्स की जगह परसेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक सपोज हमें इस पूरे कंटेंट को एक तरह से सर्कल बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके पूरे बॉर्डर रेडियस को तो वही सर्कल में होंगी. अब ये सर्कल में पूरा नहीं है क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ जो है वो अलग अलग है. अगर हम लेट्स से इसकी हाइट को 500 पिक्सल कर देते हैं एंड इसकी विड्थ को भी हम 500 पिक्सल कर देते हैं, तो अब ये एक प्रॉपर सर्कल हमारा बन जाएगा. सो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर रेडियस को चेंज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो अब हम एक दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं. लाइक या सो लेट्स से मैं H4 टैग को टारगेट करता हूँ, एंड H4 सर का आपने अभी अभी जब इक्वल कर दिया था, मतलब सर्कल में चेंज कर दिया था, तब पैडिंग काम नहीं कर रही थी. आई थिंक वो मतलब जो आपने अंदर लाइन टाइप की है वो टच कर रही थी बॉर्डर को. हाँ, तो उसमें क्या है कि वो एक स्क्वायर के बेसिस पे अपनी पैडिंग को वो प्रोवाइड करता है. लाइक जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था डेफ टूल्स में कि वो स्क्वायर के बेसिस पे पैडिंग प्रोवाइड करता है, वो सर्कल के बेसिस पे नहीं करता है. तो उसमें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी. लाइक सर्कल में तुम्हारा ये वाला जो साइज है वो चीज़ें गायब हो जाएंगी, तो इसलिए वो पैडिंग वहाँ पे काम नहीं करेगी. ओके सर, थैंक यू. इसलिए हम इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द सम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. सो लेट्स से मैं H4 टैग को लेता हूँ एंड मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लाइक 100 पिक्सल, सो दैट इट इज़ विजिबल टू यू ऑल. लेट्स से यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा अब विजिबल हो रहा है, एंड हमें इसकी इमेज, मान लो बैकग्राउंड की जो इमेज है, हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये ब्लैक कलर में ना हो, बल्कि ब्लैक कलर की जगह यहाँ पे एक इमेज आ जाए. सो उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए लेट्स से हमने इसको फॉन्ट साइज दे दिया 100 पिक्सल का. देन हम इसमें बैकग्राउंड इमेज ऐड कर देंगे. बैकग्राउंड इमेज. सो लेट्स से मैं एक URL का यूज़ करता हूँ.
एंड URL में एक इमेज डालता हूँ। सो ये मैंने पहले भी दिखाया था कि ये चीज़ें इस तरीके से डिस्प्ले होंगी, लाइक ऊपर मैंने बताया था। देन लेट्स से मैं यहाँ पे भी इनको background repeat है, it will be set to no repeat and its size will be covered. Okay, so after that let's say एक इसमें प्रॉपर्टी होती है कि हम जो हमारा बैकग्राउंड क्लिप होता है, लेट्स से मैं उस क्लिप को टेक्स्ट रखना चाहता हूँ। सो ये चीज़ें क्या होती हैं मैं इनके बारे में बताऊँगा। सो यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ नहीं है, बट ये हो इसलिए रहा है क्योंकि क्या होता है हर एक ब्राउज़र में हर प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती है। So to define every property in every browser हम we use WebKit. So इसके आगे if I write minus WebKit, so अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो चला गया। वो इसलिए चला गया क्योंकि वो इस हेलो के पीछे आ रहा है, बट अभी भी आपको वो चीज़ें विजिबल नहीं होंगी क्योंकि इसको ब्लैक कलर मिला हुआ है। सो लेट मी चेंज इट्स कलर टू ट्रांसपेरेंट। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लग गई है। सो इन दिस वे हम अपने अगर हमें किसी टेक्स्ट को उसके बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज करना है तो हम इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं कि कोई इमेज हमें अगर किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लगानी है तो। इज इट क्लियर? सर एक बार रिपीट करना सर इस चीज़ को प्लीज़। ओके, सो सबसे पहले आई हैव इंक्रीज द फॉन्ट साइज सो दैट इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। ये कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है। देन मैंने बैकग्राउंड में आई हैव प्रोवाइडेड अ इमेज। ये इमेज मेरे लोकल पीसी में ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, तो उसका मैंने खाली एक URL पास किया। देन आफ्टर दैट बैकग्राउंड रिपीट इज सेट टू नो रिपीट सो दैट द बैकग्राउंड डजंट रिपीट्स इटसेल्फ। देन उसके साइज़ को मैंने कवर कर दिया कि इट विल टेक द एंटायर साइज। सो लेट मी कमेंट द अदर कोड। सो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे बैकग्राउंड में आ गया जो कि मैं पहले भी समझा चुका था, है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने बैकग्राउंड क्लिप को टेक्स्ट सेट कर दिया कि जो सिर्फ टेक्स्ट है सिर्फ उसके पीछे हमारा बैकग्राउंड लगना चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा बैकग्राउंड था वो सिर्फ उस टेक्स्ट के पीछे है, बट अभी भी वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो कलर ट्रांसपेरेंट करने से क्या हो गया, अब हमें सिर्फ बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, उसका जो ब्लैक कलर बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए जो इमेज है वो हमारे टेक्स्ट के पीछे लग गई। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। यस सर, मैं बस ये पूछा था आप ये क्या कह रहे हो कि हर क्रोम मतलब हर वेब पेज के साथ कंपैटिबल नहीं होता सर, आप कुछ ऐसा कहते हैं? हाँ, तो जैसे ये वेबकिट है ना, सो जैसे मैं इस वेबकिट को रिमूव कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आएगी। लाइक या तो टेक्स्ट ही चला गया, वेट। यहाँ पे जब हम इसको टेक्स्ट कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं आती हैं, अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये हर वेब ब्राउज़र पे कंपैटिबल नहीं होता है। अगर हम इसे एज पे खोलेंगे तो शायद वो कंपैटिबल हो, फायरफॉक्स पे खोले तो भी चल जाए, बट यहाँ पे क्रोम पे ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो क्रोम पे उन चीज़ों को काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेबकिट का यूज़ करते हैं। सो वेबकिट से क्या होता है कि वो हर एक ब्राउज़र के लिए डिफ़ाइन हो जाता है कि अब ये हर एक ब्राउज़र पे चलेगा। फिर हम उसके कलर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाता है। आई गेस नाउ थैंक यू इज इट सर। क्लियर? सर वेबकिट मतलब? वेबकिट यार एक तरह का कीवर्ड होता है जिससे कि हम सारे वेब पेजेस को बता सके कि ये प्रॉपर्टी हर एक वेब पेज पे हमें डिस्प्ले करानी है। ओके। हाँ, सो देन हम एक नई स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक मोस्टली ये चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अचीव करते हैं, बट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये चीज़ें HTML से भी एक बार करके आपको दिखा देते हैं। पहले तो इसका फॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं सो दैट ये ज़्यादा स्पेस ना ले। ओके, सो या लेट्स से कि हम बॉडी में हम सेट कर देते हैं एक काउंटर, एंड काउंटर को हम एक नाम दे देते हैं। अब ये काउंटर क्या होता है यार, मैं ये चीज़ें बताऊंगा। लेट्स से हमारे काउंटर का नाम है हेड, ओके। और मैं चाहता हूँ कि सारे जो हमारे H5 टैग्स हैं, सो सारे H5 टैग में जैसे मैंने यहाँ पे बताया था PPT में कि वी हैव सम सूडो क्लास सेलेक्टर्स। सो एक सूडो क्लास सेलेक्टर हमारा बिफोर और आफ्टर भी होता है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक बिफोर यूज़ करके दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। इसके बारे में इन डिटेल अपकमिंग लेक्चर्स में बताया जाएगा। सो लेट्स से मैं H5 के बिफोर में इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ।
सो इस काउंटर को इंक्रीमेंट करके भी मैं हेड ही लिखता हूँ एंड इसके कंटेंट को लेट से मैं कर देता हूँ काउंटर एंड इसको भी हम सेम नाम दे देते हैं हेड। सो इससे क्या हो गया है कि जितने भी H5 टैग्स होंगे उसके आगे एक नंबर लेके आ जाएगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हो, इसके मैं फॉन्ट साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। लेट्स से हम इसके फॉन्ट साइज को रखते हैं 50 पिक्सल। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लेट मी कोड इट फर्स्ट। सो लेट्स से आई राइट some space and then after that we write some semicolon. सर लैग आ रहा है। अपने आप से आ जाएगा। Their voice. सॉरी, एक सेकेंड यार। यार जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। एक सेकेंड है, नेटवर्क इशू है थोड़ा। Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. Yes, sir. Let me know if my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's say हमने एक पूरी बॉडी को एक काउंटर, हम उसके काउंटर को बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हेड नाम के काउंटर को H5 पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर सेम डेटा पे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, लेट्स से कि तुम्हारे पास यहाँ पे पार्ट 1 हेलो लिख के आ गया। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा H5 टैग डाल देता हूँ। तो सिर्फ हेलो अगेन। तो के लिए 2 तो Sir, your voice is lagging again. कराना चाहते हैं विच बने टीम है। सो उनकी साइड पे चीज़ें तो काफ़ी सही आ रही है। आई गेस प्लीज टेक योर कनेक्शन। कोई और कंफर्म कर सकता है क्या, सबकी साइड सेम इशू है क्या? Yes, sir. Voice lag हो रही है। Yes, sir. वॉइस लैग हो रही है या फिर स्क्रीन डिलेड आ रही है? Sir, Sir, both. voice lag. दोनों हैं क्या? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, विल शेयर स्क्रीन अगेन। अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes. Yes, sir. इसमें कोई इश्यूज है? Okay. Okay, so shall I continue? Yes, sir. Yeah. So as you can see कि हमने यहाँ पे एक दूसरे H5 को भी हेलो अगेन लिख के दिया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसको पार्ट 1 प्रोवाइड नहीं किया था, बट स्टिल वो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 अपने आप आ गया। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे इसको वापस कॉपी पेस्ट करके डाल दूँ तो हर बार वो नंबर हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा।
लाइक यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पार्ट 3 आता जाएगा, ऐसे जितनी भी पार्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो बेसिकली ये चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से अचीव करते हैं, बट एचटीएमएल से भी अगर हम करना चाहें तो वी कैन डू दिस ऑल्सो। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि इंस्टेड हम ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ क्यों नहीं कर लेते। सो लाइक अगर मान लो हमें कुछ हेडिंग वगैरह को प्रोवाइड करना है, तो हम हेडिंग वगैरह में अगर हमें ये प्रॉपर्टीज़ चाहिए या फिर हमें कोई और लॉजिक चाहिए कि लेट्स से हम इसकी प्रॉपर्टी को 1 के बाद सीधा 5 डिस्प्ले कराना चाहते हैं या कुछ और नंबर्स हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सो उसके लिए हम हेड टैग का यूज़ करते हैं। सो इन चीज़ों के बारे में भी आपको आगे बता दिया जाएगा। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक लेक्चर ऑन काउंटर्स। सो इस तरीके से हम काउंटर्स को डिफाइन करते हैं। फ्रॉम लाइन नंबर 12 टू लाइन नंबर 22, ये पूरा जो कोड है ये हमारा काउंटर के लिए है कि हमने बॉडी में क्या किया, एक काउंटर सेट किया, उसका नाम दिया हेड। देन हमने काउंटर को इंक्रीमेंट किया और उसके नाम को डिफाइन किया कि उसका नाम हेड होगा। आफ्टर दैट हमने उसके कंटेंट को लिख दिया कि यहाँ पे पार्ट लिखना, देन उसके काउंटर को बार बार डिस्प्ले कराना, एंड देन एक सेमी कॉलन। और इसमें हम बाकी अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आप लोगों ने देखा कि वो पूरा डेटा डिस्प्ले हो रहा था। सो hello, is there any issue with voice and No, speech? sir. The voice It's not lagging, right? सबके केस में हो रहा है या कुछ केसेस में हो रहा है? हेलो Sir, everyone. ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? Yes, sir. Hello. Is my voice clear? No, sir, it's lagging. Guys, just wait for a while. Let me change my internet connection. Hello, am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me share my screen. Is it visible? Yes, sir. Yes. Yes. ओके, सो मैंने ये जो काउंटर रीसेट वाला पार्ट समझाया, ये समझ में आया सबको या फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ? समझ Hello. में आ गया। So yeah, so this was all about this lecture. Sir, repeat, And sir, one more. Sorry? Sir, can you repeat, sir, once again, sir? हाँ, ओके, श्योर। सो हमने क्या किया यार कि हमने अपनी पूरी बॉडी में एक काउंटर रीसेट नाम दिया, उसको नाम हमने दिया हेड। आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, लेट्स से मैं इसको हेड 1 दे देता हूँ। देन यहाँ पे हमने हेड 1 देने के बाद वी हैव चेंज इट्स फॉन्ट साइज सो दैट इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देन आफ्टर दैट हमने H5 के बिफोर टैग में, लाइक बिफोर इज़ अ सूडो सेलेक्टर। सो इससे क्या होता है, इसके बारे में भी इन ब्रीफ आपको बताया जाएगा आगे लेक्चर्स में। इसमें हमने क्या किया, इसके कंटेंट में पार्ट लिखा एंड देन हमने काउंटर को, जो भी हमारा नेक्स्ट काउंटर होगा वो डाला। सो लेट्स से मैंने वहाँ नाम किया था हेड 1, सो लेट मी चेंज इट्स नेम टू हेड 1 अगेन ओवर हेयर।
एंड हम हर बार इस हेड 1 को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पहले बॉडी में हेड 1 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे इसने हेड 1 की वैल्यू 1 को डिस्प्ले करा दिया बाय डिफ़ॉल्ट। अब जब ये वैल्यू 1 डिस्प्ले हो गई तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसने H5 को हिट किया। जैसे उसने H5 को हिट किया तो अब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई थी, तो यहाँ पे वो चीज़ अब यहाँ पे 2 डिस्प्ले हुई। देन वापस उसने हिट किया, वो 3 हुआ, तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिख के आ गया। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट इससे बेटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, एंड उसकी स्टाइल को हम चेंज कर देंगे, उसके फॉन्ट वेट को और फॉन्ट साइज़ को चेंज कर देंगे तो भी ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी। तो हाँ यार, उससे भी हो सकती है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जब यूज़र इन चीज़ों को ऐड करे, सपोज़ आप कुछ चीज़ पोस्ट करना चाहते हो एंड उसमें आपने हेडिंग डाली, तो आप दिखा सकते हैं ना कि जब भी H5 के अंदर कोई हेडिंग हमारी आ रही होगी, तो उस हेडिंग के आगे एक पर्टिकुलर नंबर लिखना चाहिए कि ये 5th हेडिंग है, ये 6th हेडिंग है। तो उस चीज़ के लिए हम काउंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट काउंटर्स। आई गेस जिसका डाउट था ये चीज़ क्लियर हो गई है। हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो दिस वाज ऑल अबाउट CSS यार। अब किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वी हैव हाफ एन आवर लेफ्ट। एनीवन, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस H5 के बाद लेक्चर? तो बिफोर वर्ड क्या था सर? हाँ, बिफोर एक तरह से हमारा सूडो क्लास सेलेक्टर था, तो मैंने कहा कि मैं इसके बारे में मतलब आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से बताएंगे। ये कंटेंट मतलब इस लेक्चर में ये चीज़ें कवर होनी थी, सो मैंने बिफोर के बारे में बता दिया। बिफोर से क्या होता है यार कि जो भी तुम्हारा H5 पे कंटेंट होगा उससे पहले एक दूसरा कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा, तो उसके लिए हम बिफोर टैग का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक आफ्टर टैग भी होता है। आफ्टर क्या होता है कि उस कंटेंट के बाद कोई चीज़ हमें अगर कंटेंट डिस्प्ले करानी है डायनेमिकली या किसी और तरीके से भी, तो हम उसके लिए आफ्टर टैग का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास हवर भी होता है। हवर से क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट पे हवर करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक हवर टैग का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि यहाँ पे H1 है। अब सॉरी, माय स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल, राइट? इज इट विजिबल? Visible, sir. Sir, it is visible. Yes, sir, it's Yes, sir, it is visible. visible. ओके, सो हम H1 टैग में लेट्स से आई राइट होवर इफेक्ट, एंड हम H1 पे जब भी हवर करें तो हमारा जो कलर है वो हो जाए टोमेटो। सो यहाँ पे जितने भी हमारे H1 टैग्स हैं, इस पर जब मैं हवर करूँगा तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एज यू कैन सी कि हम इस पर हवर करते हैं तो इसका एक कलर जो है वो चेंज हो रहा है। इज इट विजिबल, दिस हवर पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It हाँ, सो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे सूडो सेलेक्टर्स होते हैं, सो इनके बारे में भी इन ब्रीफ आपको बताया जाएगा। एनी अदर डाउट? सर जैसे सर हम बिगनर्स हैं तो हमें ये सब कीवर्ड्स याद रखने की जरूरत है, जैसे कुछ नहीं कीवर्ड्स हैं। नहीं, हाँ, तुम्हें ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज तुम्हें नहीं पता कि हाउ यू वांट टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट एरिया, सो जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट एरिया इन HTML, एंड यहाँ पे तुम्हें W3 स्कूल के बारे में टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में बता दिया जाएगा, उसके बारे में इन ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सीधा यू कैन टेक द कोड फ्रॉम हेयर एंड यू कैन पेस्ट इट राइट ओवर देयर। तुम्हें कॉलम्स एंड रोज के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तुम्हें कोई एरर आ रहा है, हाँ, जैसे मैंने कहा था ब्राउज़र सपोर्ट कि कुछ जगह होता है कुछ जगह नहीं होता, तो क्रोम में कुछ चीज़ें टेक्स्ट एरिया हर एक ब्राउज़र में सपोर्ट करता है। तो कोई टैग है, जैसे मान लो तुम्हें उसके बारे में और जानना है, तो यू कैन विजिट W3 स्कूल एंड यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि ओके ये टेक्स्ट एरिया जो है ये क्रोम पे सपोर्ट करता है कि नहीं, एच पे करता है कि नहीं, फायरफॉक्स पे करता है कि नहीं, ओपेरा पे करता है कि नहीं। तो इस तरीके से तुम्हें ब्राउज़र सपोर्ट और वेबकिट के बारे में भी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें हर एक टैग के बारे में पता ही होना चाहिए। तुम्हें जो चीज़ें नहीं आती हैं सीधा वो प्रॉब्लम को गूगल करो एंड यू विल गेट इट सोल्यूशन। इफ़ नॉट W3 स्कूल देन तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो पे इसका सोल्यूशन पक्का ही मिल जाएगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो अभी वो तुमसे पहले काफ़ी सारे लोगों ने फेस की होगी एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी किसी न किसी ने दिया होगा, तो तुम्हें वो चीज़ें भी वहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। तो ये सब याद रखने की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है। ओके सर। और सर जैसे हम स्टार्ट करते हैं कोई वेब पेज बनाना फॉर द बिगनर्स, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें पता नहीं रहता कि हम शुरू कहाँ से करें।
तो वो सब कैसे पता चलेगा? तो यार हम एक वेब पेज का पहले एक बेसिक लेआउट बनाते हैं, एक बेसिक डिज़ाइनिंग हम एक वेब पेज की करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, क्या क्या कंटेंट आना चाहिए, उसके लिए हम कंटेंट लिखते हैं। देन उसके बाद जब एक बेसिक पेपर पे हमारा लेआउट बन जाता है कि ओके इस तरीके से हमारा जो वेब पेज है वो दिखना चाहिए, देन हम उसके बाद कोड करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमारा नेविगेशन होगा, यहाँ पे हमारी ये चीज़ होगी। लाइक हम AIT OSS की वेबसाइट पे जाएँ तो ये हम लोग जब इसको डेवलप कर रहे थे तो हमें इसका एक डिज़ाइन दिया गया कि यहाँ पे ये जो चीज़ होगी ये सेंटर पे होगी, वी हैव आवर नेविगेशन बार ऑन द लेफ्ट साइड, विल हैव दिस पैराग्राफ टैग इन बिटवीन, देन एक इमेज आनी चाहिए, देन हमारे हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जब हम ये क्लब मेंबर्स का पेज बना रहे थे तो भी हमें एक डिज़ाइन दिया गया कि ये चीज़ें किस तरीके से डिस्प्ले होनी है। सो इस तरीके से पहले एक डिज़ाइन मिलता है, उस डिज़ाइन को हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं, देन उसको हम कोड करते हैं। सो इसी तरीके से वेब पेज बनाया जाता है, बिगिनर हो या एडवांस सब ऐसे ही करते हैं। तो जैसे पेपर पे पहले बना के देख लो फिर उसी आप पेपर पे बना सकते हो, फिग्मा पे बना सकते हो, पेंट पे बना सकते हो, जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो। ओके सर, थैंक यू। सर वेबसाइट को डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी चीजें जो HTML का स्टाइल टैग है उसके अंदर ही लिखनी है। हाँ, या तो नहीं, हम मोस्टली क्या करते हैं ना यार, लाइक लेट मी गो टू द यूट्यूब एंड लेट्स से हम किसी भी वेबसाइट पेज पे जाते हैं तो OSS पे जाते हैं एंड हम एक दूसरे उस पर लेट्स से हम कोड विद हैरी की वेबसाइट कोड विद हैरी के चैनल पे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या होगा यार कि एज यू कैन सी कि लेट्स से ये दो डिफरेंट पेजेस हैं, ऑल्दो ये इनके कोड करने के तरीके काफ़ी स्मार्ट थे, तो ये दो डिफरेंट पेजेस तो नहीं ही हैं। हाँ, तो लेट्स से ये ओपन कोड विद हैरी का पेज है एंड देन हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का पेज है। सो यहाँ पे चीज़ें कैसे डिस्प्ले हो रही है कि हमारे लेफ्ट साइड में नेविगेशन बार आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम ही होगा कि हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कि हमारा लेफ्ट साइड में जो है वो नेविगेशन बार आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई गई कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उस पर कंटेंट को खाली चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें हमने इसलिए एक्सटर्नल CSS की मदद से ली कि हम ये सारा कोड जो होता है हम प्रेफर करते हैं कि हम हमेशा एक्सटर्नल स्टाइल शीट में करें। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमने बनाई और हम उस स्टाइल शीट को ला करके यहाँ पे लिंक कर देंगे। जब हम उसे लिंक करेंगे तो हमारे जितने भी सिमिलर पेजेस होंगे, लाइक ये पेज और ये पेज, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो इन दोनों पेजेस पे हमारा सेम लेआउट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए हम मोस्टली एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं ताकि हमें खाली एक लिंक प्रोवाइड करनी पड़े और इसके अंदर के कंटेंट को हम चेंज करें और डिफरेंट वेब पेजेस पर डिफरेंट कंटेंट के साथ हम चीज़ें डिस्प्ले कर सकें। सो इसलिए हम हमेशा एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। ओके सर। एनी अदर डाउट्स? सर किसी did you पर्टिकुलर guys एरिया में Sir, one doubt, sir. हाँ Sir, like you're using text editor, we can use any other also, na? हाँ, you can Other use text any other editors. editor as well. You can use Sublime, you can use Notepad++. VS Code हम इसलिए प्रेफर करते हैं यार कि लाइक तुम्हें CSS C++ भी पढ़ाया जाएगा, देन यू विल बी थॉट अबाउट जावा आई गेस, एंड पाइथन भी पढ़ाया जाएगा। तो डिफरेंट कोड एडिटर इंस्टॉल करके मतलब क्यों ही टाइम वेस्ट करना, इससे बेटर है कि एक पर्टिकुलर VS कोड इंस्टॉल करो, जस्ट फॉलो सम एक्सटेंशंस जैसे बताया जाता है एंड उसके हिसाब से तुम इसमें वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, तुम इसमें C++ कर सकते हो, तुम इसमें जावा भी कर सकते हो एंड पाइथन भी। सो इसलिए हम इसको VS कोड को प्रेफर करते हैं। इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो पसंद है आप वो कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। इज इट क्लियर? Yes, sir, it's clear, sir. Clear. Okay, any other doubts? सर सर किसी पर्टिकुलर एरिया में वीडियो कैसे लगाते हैं सर, बैकग्राउंड में? यार ये चीज़ें तुम्हें आगे आने वाले लेक्चर्स में बताई जाएंगी, लाइक ये हमारा एक प्रॉपर प्लान बना हुआ है कि कौन से लेक्चर में क्या चीज़ें बतानी है, तो वीडियोस किस तरीके से लगाई जाती हैं ये भी हम तुम्हें आगे आने वाले लेक्चर्स में समझा देंगे। मोस्ट प्रेफरेबली हम वीडियो टैग का यूज़ करते हैं एंड बैकग्राउंड में हम उस वीडियो को लगा देते हैं
एंड उससे ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर वो पूरे बैकग्राउंड में लग जा रही है। मेरे को एक पर्टिकुलर बॉर्डर के अंदर चाहिए, तो उसके लिए पूछ रहा था मैं। तो उस पर्टिकुलर डिव में कर सकते हो, लाइक लेट्स से हमें से हम तुम्हें कुछ जैसे यहाँ पे एक डिव था, तो ये एक पर्टिकुलर डिव था, ठीक है। तो इस डिव के बैकग्राउंड में तुम खाली उस वीडियो टैग को डालो तो वो आ जाएगा। यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड वीडियो को तुम तो डालोगे सर मैं तो तो यहाँ पे खाली कोई टेक्स्ट नहीं डाल रहा, तो उसमें कोई वीडियो भी नहीं आ रही। लाइक मैं समझा नहीं। मतलब किसी डिव में मैं अगर कोई कंटेंट नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ अगर, तो वहां पे वो वीडियो नहीं आ रही। इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना, लाइक हम वीडियो टैग के अंदर उसकी विड्थ वगैरह डिफाइन करते हैं, सोर्स में असासी में उस वीडियो के लिंक को डाल देते हैं एंड उससे हमारा काम बन जाता है यार। मोस्टली तो हम ये चीज़ें ऐसे ही करते हैं। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। Any other doubts? We still have 23 minutes left. Box model. Okay, so I guess तुम लोगों को बॉक्स मॉडल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था क्या, ये चीज़ें? हेलो। क्या चीज़ सर? बॉक्स मॉडल जो हमने पैडिंग मार्जिन वगैरह बताई थी यहाँ पे। यस सर, क्लियर। यस सर। हाँ, तो यार इसमें एक और होता है कि बॉक्स साइजिंग हम बॉर्डर बॉक्स सेट कर देते हैं, लाइक लेट्स से हम यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स सेट करते हैं। इससे क्या होता है कि जितना हमने कंटेंट, जितना हमने प्रोवाइड किया कि हाइट और विड्थ जितनी होनी चाहिए, सिर्फ उतनी ही हाइट और विड्थ लेता है और उसके अंदर फिर वो चेंजेस करता है। लाइक लेट्स से मैं अपने वी एस कोड पर वापस जाता हूँ एंड इस पार्ट को मैं एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ, तो ये देखो ये चीज़ें थोड़ी बड़ी हो गई। तो ये क्या हो रहा है कि हमने जो इसको बॉक्स इसको हाइट दिया कि ये 500 पिक्सल होगा, इसको वेट दिया कि ये 500 पिक्सल होगा, तो ये 500 पिक्सल नहीं है, क्योंकि हमने डिफाइन किया कि इसमें हमें पैडिंग भी देनी है अंदर से जो कि 50 पिक्सल की होगी। तो इमेजिन करो 50 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड 50 पिक्सल फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 100 पिक्सल इसकी विड्थ और इंक्रीज़ हो गई। हम अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसकी बॉक्स साइजिंग को जो है बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं। उससे क्या होगा, अब ये उसी 50 पिक्सल में ही अपने अंदर उस कंटेंट को चेंज करता है, उसी 500 पिक्सल में अपने कंटेंट को अकॉर्डिंगली पैडिंग और मार्जिन प्रोवाइड करता रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे HTML में, CSS में। सर अगर हम टैग के जो ब्रैकेट आपने शुरू करके फिर कोड लिखते हैं हम, तो हम उस ब्रैकेट को बंद ना करें तो फिर इट्स लाइक तो अगर आप हमने उसे जैसे बंद नहीं करेंगे तो वो एक सिंटेक्स एरर आ जाएगा एंड उसकी मदद से वो डेटा जो है वो तुम्हारा डिस्प्ले नहीं होगा, लाइक वो रेड कलर में आ जाएगा एंड वो अनडिफाइंड हो जाएगा एक तरीके से, तो वो तुम्हारा जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। सर ऐसा तो सिर्फ मतलब HTML में होता है, अगर हम जावास्क्रिप्ट में ले तो वो कुछ डिस्प्ले होगा कि नहीं? नहीं, जावास्क्रिप्ट में लोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा, तब तो वो वहीं पे तुम्हें रन टाइम पे एरर दिखा देगा कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड ये चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो सकती। लाइक यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने H2 टैग में एक वो हटा दिया है, ग्रेटर देन का साइन, एंड वो चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो रही। Any other doubts? किसी को डाउट्स नहीं है? हेलो Guys, at least respond. नो सर। Hello. फिर हम क्वेश्चंस पूछें? यस सर। अच्छा ठीक है। मुझे ये बता दो कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। हैंड रेज कर लो अगर हाँ, हैंड रेज कर दो। उसके बाद में मैं पूछ लूँगा।
हाँ बोलो निकिता। The padding margin is for the outer box and padding is for the inner text which we have written inside that box. सही है। देखो होता क्या है कि ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉर्डर के पार्ट है, तो बॉक्स के बाहर जो भी लगाओगे उसको हम मार्जिन बोलते हैं, एंड जो बॉक्स के अंदर हम लोग जो भी ऐड करेंगे वो हमारी पैडिंग होती है, ठीक है। तो ठीक है, अब मुझे कोई बता, बॉर्डर बॉक्स लगाऊंगा मैं और अगर नहीं लगाऊंगा तो उनमें क्या डिफरेंस आएगा? Hello, am I audible? Sir, can you just repeat the question? द क्वेश्चन वाज कि अगर हम बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं और बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होगा? लाइक मैंने लगाया तो क्या होगा, नहीं लगाया तो क्या होगा? हैंड रेज कर दो यार जिसको भी आता है। शायद फ्रंट की साइज कम या ज़्यादा हो सकती है। हाँ शुभम बोलो। सर जो कलर है बॉर्डर के बाजू है। आवाज़ क्लियर नहीं थी, एक बार रिपीट करो। जो कलर है वो बॉर्डर के बाहर भी होगा, बॉर्डर डिफाइन नहीं करेंगे तो कलर बाहर भी रहेगा। रुक जाओ, देखो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, मैं एक बार पेंट खोल लेता हूँ जिससे कि तुम्हें ज़्यादा क्लियर, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तुमको? यस सर। यस सर। यस ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा एक मान लेते हैं हम बॉक्स है, ठीक है। अब द थिंग इज़ कि जो भी हमारा मार्जिन आएगा वो बॉक्स के बाहर आएगा, ये जो पार्ट होगा वो बॉक्स के बाहर वाला मार्जिन होगा, ठीक है। जबकि जो भी हमारी पैडिंग होती है वो हमेशा बॉक्स के अंदर आती है, ठीक है। ये जो पार्ट है ग्रीन पार्ट जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे अंदर पैडिंग आती है, एंड देन पैडिंग के अंदर हमारा कंटेंट होता है, ठीक है। ये जो भी पार्ट है यहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा बॉक्स का। अब जब मैं बॉर्डर बॉक्स लगाऊंगा, देखो अगर मैंने बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाया तो ये जो रेड वाला पार्ट था ये मेरी बॉक्स की हाइट थी, ठीक है। अभी मान लेते हैं मेरी बॉक्स की हाइट जो थी, ये मेरा बॉक्स है, मान लेते हैं यहाँ पे भी ये 5 यूनिट है और यहाँ पे भी ये 5 यूनिट है, ठीक है। इतना यहाँ तक आ गए ना सब? कोई डिले या लैग नहीं है ना? नो सर। No, ठीक sir. है। अब जब मैं अगर इसमें अंदर मान लो मैंने इसमें 2 यूनिट का पैडिंग ऐड करी, ठीक है। तो जब मैं इसमें 2 यूनिट की पैडिंग अंदर ऐड करूँगा ना, और अगर मैंने बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाया तो एक्चुअल में क्या होगा कि इस बॉक्स का ना साइज़ चेंज हो जाएगा। इस बॉक्स का जो बॉर्डर हो जाएगा वो 7 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 2 ऊपर और 2 नीचे 9 यूनिट्स का हो जाएगा, एंड अंदर हर तरफ यहाँ पे 2 यूनिट की पैडिंग आ जाएगी। ये वाली चीज़ समझ आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो ये पहले 5 का था बट अब ये 9 का हो गया। बट हो सकता है कि मैं ये बिहेवियर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स है वो 5 यूनिट का ही रहे, बट उसके बाद में भी जब मैं अंदर पैडिंग ऐड कर पाऊँ, तो इसीलिए हम उसको बॉर्डर बॉक्स देंगे। तो अगर हम बॉर्डर बॉक्स देंगे तो जो भी इसका कंटेंट है, मान लो अभी यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है। अगर मैंने बॉर्डर बॉक्स नहीं दिया तो कंटेंट उतनी ही स्पेस ले रहा होगा और कोई इशू नहीं होगा। कंटेंट के ऊपर पैडिंग आएगी एंड उस पैडिंग की वजह से जो बॉक्स की ओवरऑल डायमेंशंस थी वो चेंज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बट अगर मैं बॉर्डर बॉक्स लगाऊंगा तो बॉक्स की डायमेंशन फिक्स रहेंगी, उसके बाद में अगर मैंने पैडिंग ऐड करी तो मेरा कंटेंट अंदर ही श्रिंक हो जाएगा, बट मेरे बॉक्स की डायमेंशन फिक्स रहेंगी। तो ये 5 ही रहेगा, बट यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा होगा वो और कम स्पेस में आएगा, जिससे कि यहाँ पे अंदर 2-2 यूनिट की पैडिंग हर तरफ से ऐड कर पाएँ। समझ आ रहा है क्या ये डिफरेंस बॉर्डर बॉक्स का, बॉर्डर बॉक्स लगाने का और ना लगाने का? Yes, sir. किसी को शायद डाउट है?
क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने कहा था सर आप गिटहब भी बताओगे सर? हाँ, see, in last बचा session, देना। yes, in last session we were not able to cover all the topics related to GitHub. So we have decided that we will take another 2-hour session on GitHub on 30th, most probably. So we'll cover all the remaining topics of GitHub on that day. So you don't have to worry about that. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. If you have any doubts regarding like this session, then you can ask. सबको सब समझ आ गया? सर यूट्यूब पे कब तक अपलोड होगा सर ये वाला? We'll try to upload it by the end of the day. So you don't have to worry about it. We have already uploaded the previous session. Also, you can visit this site. I'll paste the link in the chat box as well. Just a second. I'll paste this link in the chat box. सर ओएसएस की साइट पे नहीं है इसकी लिंक? I'll check if it is not there on the OSS site, then I'll update the site and it will be available on site as well. Just a second. Let me see. सर कल की क्लास किस टॉपिक पे होगी? कल की क्लास में we'll take advanced topics related to CSS. Today we had basics of CSS. So tomorrow we are going to have more advanced topics like display properties, and then we have position properties. So yeah. Okay. See, you can visit this site. I've सर already. थोड़ा जल्दी डाल दीजिए फिर। Yeah, I have जल्दी डाल already. दीजिए यूट्यूब पे, मतलब एक बार प्रैक्टिस करनी। Yeah, okay. I'll try to upload it as soon as possible. The thing is that we are having some issues with college Wi-Fi right now because college have opened after so long. So that is why it is taking a little more time. But we'll try to upload it as soon as possible. See, I have given the link in the chat box. You can visit that link, and then for every class, like you can see here these cards, and if you click on notes, then you can download the then if you can download the PPT of that class, and if you click on the video, then you can go to then it will redirect you to the YouTube. Okay, so you can see the sessions from here. These classes are not available yet, so that is why you are not able to use these links. But we'll as soon as we like upload the links, we will also upload this update this site, and you can then get everything related to our like current topic from here. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So you can just visit this site. We'll also upload the site, update the site link on AIT OSS site. You can I'll update this, and then you can see you will be able to see a card over here named Spark, and if you click on it, then you'll get redirected to this site. Okay. So what will be the procedure of AIT interview for the membership? See, we are not expecting technical skills from your side because we know that you have just entered college and you don't have exposure in that field. But yeah, it will be more based on you, like your communication skills or some other skill you have, say, video editing. Hello, am I audible? Sir, Yes, how sir. can we launch our site on the internet? You design that. डोमेन खरीदना पड़ता है। We'll explain this later. Yeah, you'll have to buy a domain, and then if you have backend, then you will have to get a Linux server and things like that. तो कोई So फ्री वाला मिलता है क्या आजकल? फ्री वाले मिल ही नहीं रहे।
With GitHub Students Pack, you will be given one domain free, I guess for 1 year. Also, you can also like use some free, there are some free services like Heroku. You can use Heroku. Then there are some more services like free services which can be used. You can also use GitHub Pages for domain purposes, but GitHub Pages does not support like backend thing. So yeah, but you can use Heroku. Heroku is free. It is for limited time, and like you have limited number of sites which you can host at a time. But Heroku is free. So you can go to Google and write Heroku, and then you'll be able to. You'll have to like follow a proper process, and after that you can host your site on Heroku. सर कितने टाइम तक रहती है? But I'm not sure about the exact times, but yeah, they provide limited number of sites for limited number of time, but it is free of cost. So if your link gets expired, then you can again initiate the link again. So that won't be an issue. Sir, can you tell the site name again? Heroku. Yeah, Heroku, Heroku. You can go to Google and just type Heroku, and then you'll be able to see Heroku.com, Heroku Cloud Application Platform. They have like also provided documentation on how you can upload everything. So you can go to their documentation and read everything. But I think this will be more complex for you now, and we'll also come to all this later. So if you are not able to understand something, then you can go to YouTube or you can wait for us. If anyone has any other doubts, then you can ask. Anything related to the club, current class or previous classes. Sir, you can share the source code of today's class. Yeah, see, as I told you, everything will be, you can, I'll upload everything here. See, on this notes link, I'll upload everything in a zip file or RAR file, and it will also have the source code of today's class as well as the PPT. Okay, sir. Thank you. Okay, so if you don't have any doubt, then for today you can do one thing. You can after we have uploaded the video, you can like follow the videos because along the class it will be difficult, but after the class you can watch that video and follow everything and try everything on your laptop as well. Okay, so you can also go to like W3 schools and explore more properties. Just a second. If you go to W3 schools, and if you go to CSS and learn CSS, then you can see everything is also given over here, and everything is like segregated properly. And so you can also go here and try different things. They also provide you online editors, so you can click on try it yourself, and then they give you a link. You can also try changing colors, like if I do yellow and I do run, then color changes. My screen is visible, right? Yes, sir. Yeah. So you can also go to W3 schools and try exploring. Same with MD and Docs. Okay, so if you don't have any doubts, then we can end today's session. सर इसमें अभी गेट योर ओन वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा था, तो उससे भी कर सकते हैं। कहाँ पर गेट योर ओन वेबसाइट? W3 schools में जब आपने खोला था ना, कोई भी It was probably an ad since नहीं this नहीं is सर, a ऐड free. नहीं, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना। Okay, just a second. See, yes. Oh, this one. See, like right side. Yeah. I've So not it tried is the W. practice section. Yes, someone was asking some other doubt. Yes. So I think it is the practice section. Try yourself. Yes. See, just go to W3 schools, and then you can scroll down and see CSS. You can click on learn CSS, and then after that you can also click on try it yourself.
You can read about the properties which we have taught you in current class, or you can also explore other properties. And if you click on try it yourself, then they'll provide you an editor. In this editor, you can try changing different properties and see how everything works. See, like more margin was added over here. If I try to add padding, Okay, I sir. can, yeah. See, 10 pixel padding was added on all sides. So you can go to W3 Schools and explore everything which was taught today. And about this, see, here you can see that they are providing free hosting service, but again, everything is limited. 100 MB data, 500 requests. So you can get free hosting services, but there will be limitations. सर I आपने एक और think, साइट का नाम लिया था ना, W3 Schools and yeah, for educational purposes, you can also go to MDN Docs. You can directly search MDN Docs, and then you can go there. Just a second. You can go to MDN Docs, and you can also go to their tutorials and read everything from here. They have really good documentation. You can also go to like CSS and see, like, just a second, I'll show you something. Position. See, here I can like explore different position properties of MDN doc. See, they have given a code on left side, and then on the right side I can see what changes this code will do. So you can also go to MDN doc and explore different things. And we'll teach you about this like position property and everything in your next class. Is this clear, MDN doc? Yes, sir. Yes, sir. For documentation purpose, you can go to W3 Schools or to MDN Docs. W3 Schools is more beginner friendly, but MDN Docs has some great documentation. So, yeah. Okay. I'll stop the recording and